پارٹی کے ضلع صدر اشتاق حسین بازا صاحب، پارٹی کے سینئر لیڈران جن میں ہمارے زونل صدر غلام علی بٹ صاحب، ہماری وومن ونگ کی صدر شہزادہ جی، جنرل سیکرٹری شیرم جی، پارٹی کے سینئر جمعہ حضرات میں عبدالکبیر نائک صاحب، عبدالکبیر بٹ صاحب، صابر صاحب، عابد صاحب، پرمار سے ہمارے رشید صاحب، گونجوا سے ہمارے عابد ملک صاحب، اختر صاحب، ماجد صاحب، اقبال صاحب، سجاد صاحب، سب ہر ایک کو میں جانتا ہوں، ہر ایک کا نام میری زبان پر ہے، لیکن وقت کی بہت قلت ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے ساتھی واپس جانا چاہتے ہیں۔ آج آپ سب لوگوں کو یہاں آنے کی تکلیف دی، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک شارٹ نوٹس میں یہاں تک آئے۔ گونجوا کنو سے، پتنازی سے، چھاترو سے، کشتواڑ کے کونے کونے سے، پلمار سے، جگہ جگہ سے ورکر یہاں جو پارٹی کے ذمہ دار وہ یہاں آئے۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ سب لوگوں کو جماعت سے ہمدردی، آپ سب لوگوں کو اپنے علاقے سے ہمدردی، آپ سب لوگ واقعی میں اپنے علاقے کے لیے، اس جماعت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، بس ایک موقع کی ضرورت ہے، ایک دشا دینے کی ضرورت ہے۔ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جموں کشمیر کی واحد ایک ایسی جماعت ہے، جو جماعت غریب طبقے کی جماعت ہے، جو جماعت ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر اس خاتون کی جماعت ہے جو واقعی میں دل میں ریاست جموں کشمیر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ گزشتہ 11 مہینے سے اس وقت نیشنل کانفرنس جموں کشمیر یوٹی میں برسر اقتدار ہے۔ یہاں کہا گیا کہ ہم لوگ 9 مہینے تک خاموش رہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ کل کو ہم پر الزام عائد ہوتے کہ آپ لوگ نے ہمیں کام کرنے نہیں دیا، لیکن اب آج اس میٹنگ ایک مہم کا آغاز ہے، اور آج ہم سب لوگ عہد کرتے ہیں کہ اس جماعت میں آنے کا ہمارا جو مقصد ہے، چاہے جماعت کی مضبوطی، لوگوں کی خدمت اور علاقے کو بہتر ایک دشا دینا، اس کے لیے آج سے ہم بیڑا اٹھائیں گے۔ ایک نئی شروعات آج سے ہوگی، اور آج ہم نیشنل کانفرنس سے سوال کرنا چاہیں گے، ہم بھارتیہ جنتا پارٹی سے سوال کرنا چاہیں گے، جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، وعدے کیے اور اقتدار حاصل کیا۔ گزشتہ 10 ماہ سے زمینی سطح پر کوئی کام نہیں ہوا۔ میں نیشنل کانفرنس اور خاص کر عمر صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بار واضح کرنا چاہیے کہ آپ کو خطۂ چناب کے ساتھ، آپ کو کشتواڑ ضلع کے ساتھ ایسی کیا دشمنی ہے؟ ہر بار ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ 10 مہینے گزر گئے، آپ سب لوگ اس بات کے گواہ ہیں، پورے خطۂ چناب کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ اس 10 مہینے میں ایک مرتبہ بھی ہماری ریاست، ہماری یوٹی کے وزیر اعلیٰ عمر صاحب اس خطے میں نہیں آئے۔ ایک مرتبہ بھی عمر صاحب کی سرکار میں شامل کوئی بھی منتری، کوئی بھی وزیر کشتواڑ نہیں آیا۔ 11 مہینے گزر گئے، کوئی ہمدردی اس علاقے کے ساتھ نہیں ہے، ایک سوتیلا سلوک اس علاقے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج بھی سرکار کے پاس کچھ وزارت کے قلمدان خالی ہیں، اور ان کے ہی جماعت کے 2-2, 3-3 MLA اس خطے سے ہیں، لیکن وہ کسی کو منسٹر بنا کے راضی نہیں ہیں، کیونکہ خطۂ چناب کے ساتھ انہیں بالکل بھی ہمدردی نہیں۔ ایک سوتیلا سلوک، جموں کو نمائندگی دی گئی، کشمیر کو نمائندگی دی گئی، پیر پنچال کو نمائندگی دی گئی، واحد ایک خطۂ چناب ہے جسے نہ تو نمائندگی دی گئی، نہ یہاں آنے کی کسی بھی وزیر نے، کسی بھی منسٹر نے یا خود عمر عبداللہ صاحب نے کوئی تکلیف نہیں کی۔ اور اس کے برعکس جب ہماری سرکار، میں کشتواڑ ضلع کی بات کروں گا، جب مفتی محمد سعید صاحب برسر اقتدار تھے، جب محبوبہ جی برسر اقتدار تھی، تو سب سے زیادہ توجہ خطۂ چناب کی طرف دی گئی۔ کوئی سیٹ ہمیں یہاں سے نہیں ملی، پھر بھی 2 مرتبہ کونسل میں ہمیں نمائندگی دی گئی۔ ایک قاضی صاحبزادی محبوبہ جی ہر علاقے میں بھی
किश्तवाड़ आई, डोडा गई, पूरी रात बल्कि सुबह फजर तक लोगों के वफूद से मिली। किसी जमात, किसी मजहब, किसी जात पात को देखे बगैर लोगों के वफूद से मिली, मुश्किलात सुनी, उनका अजाला किया। और उसके बरकस आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की हालत देखते हैं, उन्होंने हमें नजर तक नहीं दिया। और फिर भी हम कहते हैं हमारे पास लोगों के पास जाने के लिए कुछ भी नहीं, और फिर भी वो लोग दावा करते हैं कि खिताई चुनाव हमारा है। ये बात यहाँ कहने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि हम सब लोगों को, अब वक्त आ गया है लोगों के दरमियान जाना चाहिए, ये बातें लोगों तक पहुँचानी है कि अगर इस खिते के साथ कोई सही माने में मोहब्बत करता है, इस खिते की तरक्की चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ पीडीपी है। एक बहुत बड़ा मुद्दा इस खिते के साथ जुड़ा है, वो सेंगपरा वायु टनल। आप जब भी पीडीपी इक़्तिदार में आती है उस टनल के बारे में बात होती है, उसके प्रोजेक्ट तैयार होते हैं, लेकिन जब दूसरी जमातें आती हैं सिर्फ कागजी वादे किए जाते हैं, ज़मीनी सतह पर कुछ भी नहीं है। तो मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बहुत सारी बातें हैं जो लोगों के दरमियान हमको लेकर के जाना है, पार्टी का मंशूर लोगों के दरमियान लेकर के जाना है, और लोगों के साथ बैठ करके उनके मसाइल सुनने हैं, उनकी मुश्किलात सुननी है और उनके अजाले के लिए कोशिश करनी है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ड्यूटी में बरसेकदार है, मरकज में भारतीय जनता पार्टी है। तो मोदी साहब जगह जगह जाकर के कहते हैं डबल इंजन सरकार, चाहे गुजरात हो, यूपी हो, डबल इंजन सरकार। मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में डबल स्टीयरिंग सरकार है। जम्मू कश्मीर की गाड़ी की 2 स्टीयरिंग है, एक स्टीयरिंग भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, चाहे वो एलजी चला रहे हो या एलओपी साहब चला रहे हो, और दूसरी स्टीयरिंग उमर अब्दुल्ला साहब के हाथ में। सितम जरीफी की बात यह है कि दो जमातें इस वक्त हम पर हुकूमत कर रही हैं। बीजेपी भी हुकूमत कर रही है एलजी के थ्रू, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सरकार में है, वजीर आला उनका है। हम उनसे सवाल नहीं करते, हम आपस में सवाल करते हैं। और दोनों जमातों की चालाकी देखिए, काम करके कोई राजी नहीं, आपस में मुकाबला है कि अपोजिशन में कौन है। बीजेपी सरकार में और बीजेपी एहतजाज करती है कि सफाई कर्मचारियों के मुतालबात पूरे करो। बीजेपी सरकार में और बीजेपी सेक्रेटरी का घेराव करती है। बीजेपी का एलजी और बीजेपी लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रही है कि हम अपोजिशन में हैं, और दूसरी जानब नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोटेस्ट कर रही है कि हम अपोजिशन में। इन दोनों जमातों के बीच अपोजिशन में होने की दौड़ लगी हुई है। सरकार दोनों के पास है और दोनों दावा करते हैं कि हम अपोजिशन में एक दूसरे के खिलाफ है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ताकि लोग हमसे ये ना पूछें कि आपने 10 महीने में क्या काम किए। आपने 10 महीने में जो वादे लोगों के साथ किए थे, उन वादों को पूरा करना तो दूर, उन्हें पूरा करने के लिए कोशिशें क्या की, और सिर्फ लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये एक दूसरे के साथ इस कंपटीशन में है कि मैं अपोजिशन में हूँ, बीजेपी कहती हम अपोजिशन में हम धरना देंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती हम अपोजिशन में हम जुलूस निकालेंगे, जबकि दोनों सरकार में है, दोनों सरकार चला रहे हैं, दोनों के हाथ में स्टीयरिंग है। जम्मू कश्मीर में डबल स्टीयरिंग सरकार है, और जब भी किसी गाड़ी में 2 ड्राइवर 2 स्टीयरिंग पकड़कर बैठे हों, उस गाड़ी का हादसा होना तय है। इसलिए बुजुर्ग और भाई, जम्मू कश्मीर का इन लोगों ने बेड़ा गर्क करना है। जम्मू कश्मीर की नैया को पार लगाने वाली सिर्फ पीडीपी। जम्मू कश्मीर में बेहतर तरक्की, खुशहाली सिर्फ पीडीपी दे सकती है। हम सब पर जिम्मेवारी आयद होती है, हम लोगों को धोखा न दें, हम सच बात कहें। और ये मुझे अपनी जमात की बात पसंद आती है। हमने बीजेपी के साथ इलाहा किया, दिन के उजाले में किया, शर्तों पर किया, बीजेपी को अपनी शर्तों पर चलाया। हमने बीजेपी के साथ जब सरकार बनाई, एजेंडा अलायंस तय हुआ, क्योंकि हमारे पास सीटें पूरी नहीं थी, मजबूरी थी, अलायंस की मजबूरी थी, और बीजेपी के पास सीटें थी, हम मजबूर थे। जम्मू से बीजेपी जीत करके आई थी, सरकार तो बनी और शर्तों पर सरकार बनी। हमने कहा हुर्रियत वालों से बात होगी, और बात हुई, बात करने के लिए वफूद आए। हमने कहा नौजवान जो भटका हुआ उसके साथ रियायत होगी, रियायत हुई। 10,000 नौजवानों के मुकदमे वापस लिए गए। हमने कहा 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जब तक सरकार में थे हमने 370 की तरफ आंख उठाकर देखने नहीं दिया। बीजेपी को लगा कि पीडीपी ने हमारी नाक में नकेल कसी है, अगर वो हमारे साथ कंफर्टेबल होते वो सरकार से कभी नहीं चले जाते। उनमें सरकार से वो लोग चले गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास
50 MLA हैं, उन्हें मजबूरी क्या है बीजेपी के सामने घुटने टेकने की? उन्हें 1997 में मजबूरी क्या थी बीजेपी के साथ अलायंस करने की? वो तब भी मेजॉरिटी में थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब को मरकज में वजारत चाहिए थी। आज ये जो अपोजिशन का नाटक ये दोनों जमातें कर रही, वो इनके दरमियान एक फिक्स्ड मैच है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कमजोरियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अपोजिशन में होने का एक ढोंग कर रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों के दरमियान, हम सब लोगों पर जिम्मेवारी बनती, हम नवाम के दरमियान जाएं, इन लोगों को बेनकाब करें। जो भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ड्रामेबाज लोगों को धोखा देने के ड्रामा कर रहे हैं, उन्हें बेनकाब करने की जरूरत है। और ये वक्त अब मौजू है, हम सबको मुत्तहिद होने की जरूरत है। हम सबको अवाम के दरमियान जाकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना है। हमारी पार्टी के पास मंशूर है, हमारी पार्टी की क़यादत पर कोई आरोप नहीं। कोई एक शख्स कहे कि पीडीपी की क़यादत किसी रिश्वतखोरी में मुलव्वस है, कोई एक शख्स कहे कि पीडीपी ने कभी बेईमानी की है, हरगिज़ नहीं। और ये जो ड्रामे हो रहे हैं, आज 13 जुलाई 1931 के शहीदों को लेकर के भी ये लोग आपस में फिक्स मैच खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों जमातों ने हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति की। आज एक जमात कह रही वो शहीद है, दूसरी जमात कह रही नहीं वो गद्दार थे। आप अपने वादों के बारे में कहिए, आपने लोगों से जो वादे किए उन्हें पूरा करिए। इसलिए मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है, हमें लोगों के दरमियान जाना है, उनके मुतालबे सुनने हैं, उनकी मुश्किलात सुननी है, और ये हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरी जमात नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर की सियासत में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कल जो तख्त पर थे आज फर्श पर हैं, आज जो फर्श पर हैं कल तख्त पर होंगे। सही वक्त का इंतजार करना है और अपने मिशन में लगे रहना है। आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप पर आप तवज्जो दें, लोगों को अपनी जमात के साथ जोड़ें, लोगों के दुख दर्द में उनके साथ खड़े रहें, लोगों की मुश्किलात हम तक लाएं। हम जमात के खादिम हैं, लोगों के खादिम हैं। मैं कोई लीडर नहीं हूँ, न मुझे कोई नेतागिरी नीति करने का शौक है। हम लोगों के दरमियान जाना चाहते हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हमने लोगों के काम करने हैं, हमने जमात का मंशूर लोगों के पास लेकर के जाना है, लेकिन तमीज़ और इखलाक के साथ। बदकिस्मती की बात है, आज सियासत बदतमीजी, बदइखलाकी और गाली गलौज का दूसरा नाम बन चुकी है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कुछ लोगों ने यहाँ एक ऐसे सियासी शख्स का नाम लिया जो जम्मू कश्मीर का सबसे बदतमीज इंसान है, जो जम्मू कश्मीर का सबसे बदइखलाक इंसान है, जिसने हमारी पार्टी के कायद के बारे में नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए। वो हमारा मॉडल कभी हो ही नहीं सकता। हम सियासत छोड़ देंगे, लेकिन ऐसे आदमी के राह पर चलने की कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे बदतमीज और बदइखलाक इंसान का नाम लेना हमें गवारा नहीं है। हमारे पास मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सियासत, उसका मंशूर, उसका दिखाया हुआ एक रास्ता है। हमारे पास हमारी लीडर मुफ्ती महबूबा मुफ्ती साहिबा का एक विजन है, हमें उसको लेकर के आगे चलना है। हम ऐसे लोगों की मिसालें क्यों दें जो हमारे कायद, हमारी सियासत, हमारी जमात की जिनको तमीज़ नहीं, इखलाक नहीं, जो बदतमीज़ हो, जो गाली गलौज। हमने काम करने हैं इखलाक और तमीज़ के साथ काम करने हैं। और हमारे पास जम्मू कश्मीर की सियासत का सबसे बड़े मॉडल हमारे कायद हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब। सिर्फ जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला नहीं रहे, वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे। आज भारतीय जनता पार्टी वाले अमित शाह को बहुत बड़ा नेता समझते हैं। उस अमित शाह की कुर्सी पर आज से 30 साल पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब बैठ चुके हैं। हमारे पास अपने लीडर हैं। कोई कहे उन पर रिश्वतखोरी का कोई इल्ज़ाम है, कोई कहे उन्होंने कभी लोगों के साथ कोई दगा की, कोई ये कहे कि उन्होंने जम्मू में एक बार, दिल्ली में दूसरी बात, कश्मीर में तीसरी बात की। हम तो उनका प्रोग्राम, उनकी पॉलिसी, उनका विजन लेकर के लोगों के दरमियान जाएंगे। और ये हर पीडीपी के वर्कर का फर्ज है, अगर इस जमात में है तो इस जमात के उसूलों को, इस जमात के मंशूर को लोगों के दरमियान लेकर के जाएं। 28 जुलाई हमारी पार्टी का फाउंडेशन डे है। जिस दिन ये पार्टी वजूद में आई है 1999 में, उस तकरीब को मनाना हम सब लोगों को बड़े जोश खरोश से मनाना हम सब लोगों का फर्ज है। उसके बारे में डेट, जगह और वक्त मुकर्रर किया जाएगा, आप सब लोगों को मुतल्ला किया जाएगा। आप सब लोग उसमें शिरकत करें,
मेंबरशिप पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और आप बताएं। कोई ये कहे कि हम जम्मू में या श्रीनगर में बैठते हैं, एक वर्कर ये कहे कि उसने कभी सुना कि मैं जम्मू या श्रीनगर बैठूँ, या वादा साहब को भी जम्मू से नहीं। हम तो 24/7 यहाँ पर हैं, हमें ढूंढना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। फ़ोन हमेशा खुला है, मेरा फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं रहता। हाँ, हो सकता कभी मसरूफ़ इंसान फ़ोन ना अटेंड कर पाए। आपकी जो मुश्किलात हैं, आपकी जो इलाके की परेशानियाँ हैं, आपको जो भी हमसे काम चाहिए, आप हमारे साथ रब्ता करें, हमें कांटेक्ट करें। एक भी शख्स यहाँ कहे कि मैं फलां काम आपको बोला था, आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, तो मैं समझूंगा कि मेरा कसूर है। जब आप लोग अपनी परेशानी, अपने मसाइल हमें कहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो आप शायद फिर गिला भी नहीं करें। हम तो लोगों के, दूसरों के काम करते हैं। अपना वर्कर, जिस वर्कर को मेरे कायद ने कहा था कि वर्कर मेरी आँख की पुतली है, हम तो छोटे वर्कर हैं, हम तो कहते हैं कि हमारा वर्कर हमारा साथी, हमारा दिल, हमारे जिगर का टुकड़ा है, हम क्यों ना उसका काम करें। जिसने कल को हमें इज्जत देनी है, जमात को इज्जत देनी है। आप जुड़े रहिए। आप बताइए बोंजो में कब आऊँ, मैं जिस पर उनको साथ लेकर के आऊँगा। आप 10 लोग, हमें कोई जलसे नहीं करने, आप 10 लोग जमा करिए। आप बताइए मुझे, राकेश जी बताइए मुझे कब छात्र आना है। आप कहिए 10 लोगों के साथ पास आपने छात्रों आकर बात करनी है, फिर उन्हें ब्लॉक दफ्तर में जाना है, फिर उन्हें SHO के पास जाना है, SDM के पास जाना है। अगर मैं ना हूँ, आपने मुझे टाइम दे दिया, फलानी डेट को आप आइए, आपको किश्तवाड़ आने की जरूरत नहीं, हम वहाँ आएंगे। आप मुझे बताइए पलमाड़ कब जाना है। अगर मैं यहाँ से ढोडा जा सकता हूँ, मैं कहरा जा सकता हूँ, मैं ठाठरी जा सकता हूँ, क्योंकि पार्टी ने मुझे दोनों इजला की जिम्मेदारी दी, मैं वहाँ भी जाता हूँ, तो मुझे अपने इलाके में जाने में क्या इतराज़ है। जब आप लोग बोलेंगे नहीं, आप बताएंगे नहीं, मैं थक जाता हूँ कह के, बताइए मैं कब आऊँ, तो फिर गुस्ताखी में आप गिला भी नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता सिर्फ आपकी जिम्मेदारी, हम सब लोगों की जिम्मेदारी, हम सब लोगों को मुतहिद होकर के इस मिशन को आगे लेकर के जाना है। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की इश्तहार की बात करना चाहूँगा। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आजकल सोशल मीडिया में आकर के तरह तरह की बयानबाजियाँ कर रहे हैं, वहाँ से बीजेपी के लोग बयानबाजियाँ कर रही हैं, ये दोनों का फिक्स्ड मैच है, इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनको आपस में ये एक दूसरे का वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को पता है कि जो हमारा वोट बैंक है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नहीं है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमारे पास नहीं। ये अपने अपने वोट बैंक को मुतहिद करते हैं। एक शहीद कहता है, दूसरा गद्दार कहता है। एक वक्फ को सही कहता है, दूसरा वक्फ को गलत कहता है। हमें एहतियात करनी है, हम इन दोनों की सियासत में कहीं खुद मोहरे न बन जाएं। हमें ये लोग इस्तेमाल न करें जो पहले से होता आया है। ये लोग आपस में सियासत करते हैं, हम इस्तेमाल होते हैं, और लोगों के दरमियान बाद में जाकर हमारे खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। लिहाजा मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है, जो पार्टी का मंशूर है हमें उस पर टिके रहना है। जो पार्टी के लोगों को परेशानियां दरपेश है, उनके अजाले के लिए काम करनी। हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े, हमेशा साथ रहेंगे। और ये कुछ दिन गुजर जाए, हमारा फाउंडेशन डे की तकरीब हो जाए। 1 अगस्त से पार्टी प्रोग्राम शुरू करेगी। तमाम 14 के 14 ब्लॉक जो जिला किश्तवाड़ में आते हैं, 14 के 14 ब्लॉक्स में प्रोग्राम देंगे हम। आप वहाँ हूँ न हूँ, 1 शख्स हो 2 शख्स हो, हम जाएंगे और हम लोगों से मुलाकात करेंगे। आप हमारे साथ चलें और हमें बताएं कहाँ लोगों की क्या मुश्किलात हैं। 14 ब्लॉक्स में 1 अगस्त से मैं टूर करूँगा। मैं वाड़वन से या बोंजा से शुरू करूँगा। किश्तवाड़, इंदरवाल और पाडर, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी के 14 ब्लॉक्स में जाकर के प्रोग्राम होंगे, और वहाँ जाकर के ब्लॉक सदर का ऐलान किया जाएगा और वहीं ब्लॉक सदर की कमेटी तश्कील दी जाएगी। ये मैं आज आप लोगों पर वाजे कर देता हूँ कि 1 अगस्त के बाद पार्टी का प्रोग्राम यहाँ से शुरू होगा। आप सब लोग ताउन दें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आने वाला वक्त हम सब के लिए बेहतर होगा, रोशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।